Hello everyone, my name is Devang and I welcome you back to another video. In this video, we will basically solve a very interesting question which will be based on recursion only. So as I promised you that I will just do a question in which we will basically see the both steps application, which is base case small calculation and then the hypothesis, and base case hypothesis then the small step. So we will see both the cases in a particular question. So if you haven't watched the previous videos, make sure that you watch them because this video will be particularly based on those concepts only. In the previous videos we basically discussed about some part of the recursion, like what is recursion and how recursion works, and then we basically discussed about the things like how the recursion stack is there and how the stack overflow occurs, and then we discussed about some of the केसेस लाइक हम लोग कैसे करते हैं एनालिसिस दो चीज़ों का, रिकर्शन को कैसे हम लोग हैंडल करते हैं, एक स्मॉल केस से कैपिटल केस से, हमने वो सारी चीज़ें जो है प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली थी. तो यार इस वीडियो में ना बेसिकली इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे. मैंने बताया था ना एक चीज़ का कि यार रिकर्शन को करने के बेसिकली तीन तरीके होते हैं. एक हमारे पास होता है बेस केस का तरीका, सॉरी बेस केस हमको करना होता है, सॉरी तीन तरीके नहीं, तीन स्टेप्स होते हैं. एक बेस केस करना पड़ता है हमको एनालाइज, एक करना पड़ता है हमको हाइपोथेसिस के बारे में एनालिसिस करना पड़ता है कि हाइपोथेसिस कैसे चल रहा है, और तीसरा स्टेप क्या होता है हमारा स्मॉल कैलकुलेशन. ये चीज़ जो है रिकर्शन को बनाती है. मैंने एक चीज़ तुमको डिस्कस करी थी कि हम इन दोनों स्टेप्स को रिवर्स कर सकते हैं. रिवर्स का मतलब इंटरचेंज कर सकते हैं, एक स्टेप यहाँ पर एक स्टेप यहाँ पे. तो आज हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर ये दोनों के दोनों स्टेप्स यूज होकर हम लोग आंसर निकाल लेंगे, दोनों के दोनों. जैसे अगर मान लो मैं इसको ए बी सी कहता हूँ, तो अगर हम ए बी सी यूज करेंगे और एक ए सी बी, दोनों तरीके हम यूज करेंगे. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करेंगे और तुमको एक आइडिया भी लग जाएगा कभी हमको ये अप्लीकेबल करना होता है, कभी हमको अप्लीकेबल करना होता है. ठीक है, तो before diving into the main part of the video, I want to make sure that you know like why this course was possible. So this course was only possible because of the Launchpad initiative, which is taken up by Newton School to make India developer powerhouse of the world. By Newton School to make India the developer powerhouse of the world. So what is Newton School? Newton School is basically a platform from where you can learn anything for free until you are placed. Okay, so there are various teachers which are from IITs, NITs and top-notch colleges, and we have a tie with among 300 plus companies like such as Snapdeal and MI and Unacademy. So you get an assured placement package of around 5 lakh to 40 lakh CTC, which also depends upon your work also, but minimum package is 5 lakh to 40 lakh CTC, and you get a constant doubt support and a constant motivation from our teachers, and you get like basic to advanced everything covered so that you are becoming a good programmer or a good developer. Okay, so now let's dive into the question. The question states that we are given an array and we have to check whether it is sorted or not, it is sorted or not. So there are various techniques to this particular question. Like there are various techniques such as we have various sorting techniques. Sorry for the color. There are basically various sorting techniques such as counting sort if the numbers are small. Like if we know the higher range and the smaller range and the number are small, so we can use counting sort particular to check if the array is sorted or not. And we can also do this in the linear traversal, and we can check that if my previous element is smaller or greater than the next element. And we can also do this with with the help of a bubble sort. We can apply a flag concept here, like we will keep a flag over our code and we will check that if it becomes anywhere false, so we will stop the loop here and return that. And then we can also use some sort of a quick sort. So there are many methods available for this question to check. But in this particular topic or the video, we will discuss about the recursive step. One more interesting thing which I want to make you know that recursion in some cases, like recursion is faster than that of the while loop. Like you do some sort of a while work here, while loop you put it over here and you do some work over here, and the same work you do over recursion. Sometimes recursion is much faster than that of the while loop, because here the initialization will work, the increment decrement of your basically the variables which have you put it over here, and holding of that variable, but the recursive step will be faster than that of that. Okay,
Then like if we are saying that we will do with the help of recursion, and we will do with both the steps, we will do with the both the steps. And I am considering ascending order yet, I am considering ascending order yet. You can also solve this particular in the descending order also. So let's dive into the question. Like what question asked, like we are given an array such as like this, 10, 20, 30, 40. So this array is sorted, this array is sorted. So if the array is sorted, we return true. If the array is sorted, we return true. If the array is not sorted, we return false. So this is particular our topic, like a particular question just which I want to make to solve. Okay, so I want to just request you to pause this video over here and think of the solution once, because I think that you are now capable enough to solve this question. Okay, so I'm hoping that you have paused the video once and think of the solution. So this particular question can be solved of the recursion, because I said you earlier in the videos as well, like in the earlier video, like I am a lazy one. Recursion means lazy work. जब भी रिकर्शन आ रहा है उसका मतलब भी ये है कि तुमने लेजी काम करना है, ठीक है। तो जो ये वाला बेसिक है, इसके अंदर हम कैसे बस हम इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपना लेजी स्टेप। अब पहले तो मैं पहला चीज कंसिडर करूंगा इसमें बेस स्टेप, मेरा खुद का काम स्मॉल कैलकुलेशन, एंड देन सॉरी इसको एक बार यार मैं अच्छे से लिख देता हूँ, लेट मी जस्ट राइट इट हियर नीटली। पहला स्टेप करूंगा मैं इसमें बेस स्टेप, देन मैं इसमें करूंगा जो स्मॉल कैलकुलेशन, और फिर मैं करूंगा हाइपोथेसिस, ठीक है। ये मैं इसमें कर रहा हूँ। मैं कैसे कर रहा हूँ, अब देखो एक चीज समझो, अगर तुमको एरे ये दे रखा है 10 या एरे दे रखा है तुमको 20, तो ये तो ऑटोमेटिकली सॉर्टेड हुआ ना, ये तो ऑटोमेटिकली सॉर्टेड हुआ। क्या मतलब है कि इफ देयर इज ओनली वन एलिमेंट, अगर हमारे पास किसी एरे के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो उसको हम लोग सॉर्टेड कंसिडर करेंगे, उसको हम लोग सॉर्टेड कंसिडर कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा बेस केस बन गया, ये तुम्हारा बेस केस बन गया बहुत आसानी से। मैंने तुमको पहले भी बताया था कि अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा बेस केस जो है काफ़ी आसानी से निकल आता है, काफ़ी आसानी से निकल आता है। तो हमारा बेस केस का फंडा तो रिजॉल्व हो गया। जो मेरे 3 स्टेप्स थे रिकर्शन के अंदर, बेस केस वो मेरा रिजॉल्व हो गया। अब मेरे को करना है हाइपोथेसिस और स्मॉल कैलकुलेशन, ठीक है। अच्छा, अब अगर मेरे जो एरे का साइज 1 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब उसके अंदर मिनिमम 2 एलिमेंट्स होंगे। अब ये 2 एलिमेंट्स हैं, अगर मैंने मान लो ये एरे था मेरे पास, ये था 10, 20, 30, 40, है ना। तो मेरे पास जो ये 2 एलिमेंट्स हैं, इनको बेसिकली मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये सॉर्टेड है कि नहीं है। तो मैं इसको एक बार नए से बना लेता हूँ फिर से, ठीक है। मेरे पास मान लो ये 2 एलिमेंट्स हैं 10, 20, 30, 2 एलिमेंट्स में मेडिकली मैं डिवाइड कर रहा हूँ। जैसे मैंने तुमको पहले बताया था कि वी जस्ट डील रिकर्सिव बाय डिवाइड एंड कॉन्कर इन मेनी एप्लीकेशन इन मेनी क्वेश्चंस, सो वी विल बी यूजिंग द सेम पार्ट। तो मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया। अब सोचो इसको मैं कैसे कह सकता हूँ कि यार ये सॉर्टेड है कि नहीं है, सॉर्टेड है कि नहीं है, कैसे कह सकता हूँ। एक ही बेसिक सा फंडा है कि 10 शुड बी लेस देन 20। अभी हम इक्वल टू वाला केस कंसिडर नहीं कर रहे हैं। इक्वल टू वाला कंसिडर कर भी सकते हैं, जैसे कि 10 इक्वल टू 20 है तो वो वाला केस भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ये बात होगी क्लियर। अब हम लोग क्या सर्च कर रहे होंगे बेसिकली इसमें, अगर 10 लेस देन 20 है तो ये सॉर्टेड है, और बाकी सारा काम रिकर्शन कर ले, ठीक है। बाकी सारा काम रिकर्शन कर ले। हमारा वर्क तो छोटा होगा ना, आवर वर्क स्मॉल वर्क। हमारा स्मॉल वर्क क्या है बेसिकली इसके अंदर, हमारा स्मॉल वर्क ये है कि जो ये दोनों एलिमेंट्स हैं इनको हम चेक कर रहे हैं। जो छोटे छोटे 2 एलिमेंट्स हैं, छोटे छोटे नहीं मतलब कि जो 2 एलिमेंट्स हैं बेसिकली हम उनको कंपेयर कर रहे हैं, विच इज एरे ऑफ 0 एंड एरे ऑफ 1। इनको हम कंपेयर कर रहे हैं और हम रिकर्शन को बोल रहे हैं कि बाकी सारा काम तू करके ले आ, ठीक है। तो इसके अंदर मेरा फेथ क्या है, जो मेरा डेफिनेशन या फेथ क्या है जो मेरे फंक्शन का, या फेथ कह लो या हाइपोथेसिस कह लो या मेरा डेफिनेशन कह लो, कुछ भी कह सकते हो। तो वो क्या है, वो बेसिकली क्या है कि मेरा फंक्शन जो है मेरे को चेक करके देता है कि सॉर्टेड है कि नहीं है, बस ये मेरा फेथ है। और तो अगर मैं 2 एलिमेंट्स में पहले चेक कर लेता हूँ तो बाकी के ऑब्वियसली जो है मेरा रिकर्शन चेक करके मेरे को दे देगा, ठीक है। अब अगर हम देखें तो पहला मेरा बेस केस क्या हो गया, मेरा बेस केस हो गया, मेरा हाइपोथेसिस हो गया, हाइपोथेसिस नहीं कहेंगे, हमारा एक स्मॉल कैलकुलेशन भी होगी, हमारा बेस केस हो गया, हमारा स्मॉल कैलकुलेशन भी होगी। अब रह गया हमारा जो है हाइपोथेसिस यानी कि रिकर्सिव वर्क। रिकर्सिव को क्या बोलेंगे, रिकर्शन को बोलेंगे यार इसको एक बार चेक करके लाके दे क्या ये है कि नहीं। मैं एक एलिमेंट स्टोर कर लेता हूँ इंट आई, सॉरी इंट नेम करेंगे हम, बूल कहेंगे इसको, क्योंकि वी आर चेकिंग की सॉर्टेड है कि नहीं। तो बूल
x इज इक्वल्स टू इज सॉर्टेड, क्या ये वाला सॉर्टेड है, अगला पार्ट, ये वाला अगला वाला पार्ट सॉर्टेड है, तो या तो मेरे को रिटर्न करेगा 1 या तो मेरे को रिटर्न करेगा 0, ठीक है। तो अच्छा, अब अगर मान लो यही एरर आ जाता है 20 10 और बाकी 30 40, अगर यहीं पे तुम्हारा 10 20 और 10 ऐसे हो जाता है तो तुम यहीं से रिटर्न कर दोगे फॉल्स, क्योंकि ये कंडीशन तो ट्रू नहीं है, तो तुम यहीं से रिटर्न कर दोगे फॉल्स। एल्स तुम मंगा रहे हो उससे रिकर्शन से कि तुमको जो रिजल्ट लगे दे 1 या 0 क्या आ रहा है, तो इसको तुम रिटर्न कर दोगे। अगर ये 1 है तो 1 रिटर्न कर देना, 0 है तो 0 रिटर्न कर देना, क्योंकि ये लाइन तभी एग्जीक्यूट हो पाएगी जब ये वाली कंडीशन मीट करेगी, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर हम क्या फॉलो कर रहे हैं, BSH, तो S तभी हो पाएगा जब H वाली लाइन मीट हो पाएगी, ठीक है। एक तो ये तरीका है, इसको कोड करके देखते हैं, इस तरीके को कोड करके देखते हैं एक बारी। तो वॉइड नेम करेंगे, बूल करेंगे हम लोग कहेंगे बूल इज सॉर्टेड, हमको मिल रहा होगा एक इंटीजर एरे, इंट एरे का साइज मिल रहा होगा इंट के, बस ये हमको बताना है, ठीक है। तो मेरा बेस केस क्या हो जाएगा इसके अंदर, मेरा बेस केस ये हो जाएगा कि इफ साइज इज लेस देन इक्वल्स टू 1 तो रिटर्न ट्रू। लेट्स से इसको मैं जो है ये कहता हूँ, एक मिनट, इसको मैं बेसिकली मैं जो है इसको बेसिकली मैं साइज कह रहा हूँ, ठीक है। इसको बेसिकली मैं साइज कर रहा हूँ, तो यार अगर साइज लेस देन इक्वल टू 1 है तो मैं रिटर्न कर रहा हूँ ट्रू, ठीक है। दूसरा स्टेप मैंने क्या बोला था, मैं चेक करूंगा, मेरा चेकिंग स्टेप है या मेरा जो है स्मॉल कैलकुलेशन स्टेप है, तो इसमें मैं क्या चेक करूंगा कि इफ एरे ऑफ 0, देखो 10 को है छोटा होना पड़ेगा 20 से, इस लेस देन एरे ऑफ 1, तो टू कंटिन्यू करना है। बट अगर ये कंडीशन नहीं मीट करती है, बेसिकली ये नॉट है, बट अगर ये कंडीशन नहीं मीट करती है तो मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। अगर ये कंडीशन मीट कर जाती है तो मैं कहूँगा आगे का काम रिकर्शन कर दे। सॉरी, यहाँ पे मैं एक इसको स्टोर करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे लूँगा एक इंट इंडेक्स, यहाँ पे मैं ले लूँगा इज सॉर्टेड, तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, बट थोड़ा सा मैंने कहा कि चलो दोनों वाले हमारे कवर हो जाएंगे और साइज -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक पर्टिकुलर हो जाएगा कि तुमने क्या किया, तुमने बेसिकली इसको भेज दिया आगे, तुमने साइज को -1 कर दिया, तुमने साइज को रिड्यूस कर दिया, बिकॉज एक कट हो गया ना, एक तुम्हारा जो है कट, एक तुम्हारा उसमें से कट हो गया, तुमने इसको भेज दिया, तुमने चेक करा कि अगर हाँ हमारा सॉर्टेड है तो वेल एंड गुड है, लेट्स से दैट, ठीक है। तुमने एक बार यहाँ पे जो तुमने सॉर्ट करके तुमने इसको चेक करना पड़ेगा तुमको कि हम सीधा ही कह सकते हैं ना यार, अगर तुम अगर खुद ही सोचो, तुम कह सकते हैं रिटर्न बूल होगा यहाँ पे, सॉरी बूल इंडेक्स, रिटर्न इंडेक्स, दिस इंडेक्स विल बी 0 और 1, इट मीन्स दैट सॉर्टेड और नॉट, सो विल रिटर्न दैट। बेसिक ये वाला पार्ट क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा पार्ट जो हम लोग क्लियर करेंगे इसके अंदर वो होगा BHS, यानी कि बेस केस हाइपोथेसिस एंड माय स्मॉल कैलकुलेशन। अब हमने क्या किया था, जैसे हमारे पास ये एरे था, जब हमने क्या किया था, हमने 10 20 30 40 50 हमने कहा था कि यार हम इस पे काम करेंगे, बाकी जो है इस पे रिकर्शन काम करेगा, इसको हम उल्टा भी तो कर सकते थे, बेसिकली इसको हम उल्टा भी तो कर सकते थे। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका हम लोग करेंगे कि हम इसको पहले ही चेक कर लेंगे, वी विल चेक दिस लाइक बिफोर हैंड, हम उसको पहले चेक कर लेंगे कि सॉर्टेड है कि नहीं। हम लोग रिकर्शन को कर देंगे, भाई तो इसको चेक करके ले आ, क्या ये सॉर्टेड है, क्या ये सॉर्टेड नहीं है, ये जो है रिकर्शन पहले हमारे लिए करके ले आएगा, ठीक है। तो अब अगर ये सॉर्टेड आएगा तो हम इसको चेक करेंगे, अगर नहीं सॉर्टेड आएगा इसको नहीं चेक करेंगे। तो बेसिकली क्या होगा, कोड में बेस केस सेम रहेगा, लेकिन स्मॉल कैलकुलेशन से लिखने से पहले हम कॉल कर देंगे रिकर्शन को कि इज सॉर्टेड एरे +1 और साइज -1, ये हम उसको कॉल भेज देंगे और इसको बूल के अंदर हम स्टोर कर लेंगे, बूल IDX इज इक्वल टू दिस। अगर ये फॉल्स हो जाता है तो हम आगे कुछ करेंगे नहीं, ये ट्रू हो जाता है तो हम आगे चेक कर लेंगे एरे 0 और एरे, और बाकी सारा कोड सेम रहेगा। तो इस वे के अंदर हमने एक BSH भी चेक कर लिया और BHS भी चेक कर लिया। आई होप कि तुमको समझ लग रहा है कंसेप्ट अब थोड़ा बहुत है कि कैसे रिकर्सिव फंक्शंस काम करते हैं और क्या होता है, हम काफ़ी ज़्यादा हम डिस्कस कर चुके हैं। बट अगर तुमको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं तो यार तुम जो है वो लॉन्च पैड सेक्शन के अंदर डाउट सपोर्ट भी मिलता है, तो उसके अंदर तुम जो है अपना कोई भी डाउट पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो टिल देन बाय।